seconds. Okay? Yeah. Right. Good evening, ladies and gentlemen. I am your host for the evening, Ila Pachori, Principal Advisor, Global Womenpreneurs Clique, and founder of My Little Greens with Ila. So, today in our series, Aspire to Inspire, we have a wonderful lady called Dr. Priya Kaul. Dr. Priya Kaul is a hope creator. Thank you, Priya, for being with us. So let me give a brief introduction about you to our audiences, whoever are watching us today. So Priya is a healer. She is a PhD in tarot sciences. Awesome. She works in many modalities in healing like Reiki, tarot, hypnosis, past life regression, dream interpretations, angel healing, aura cleansing, aura reading, switch words, healing codes, numerology, and many other things. She believes that she is a learner at heart and she'll continue to gather knowledge throughout her life, and not only gather knowledge, but she also feels very happy sharing all the knowledge that she has within her. She has worldwide clientele. She has got some eminent celebrities from Indian TV industry and Indian cinema. She has got her clients from all across the world. She has her students all across the world and within India also. And she has a motto. She has a motto that she wants to create one healer in every family, so that this world can become a beautiful place to live in. So, and Priya has also gathered and won many awards and accolades, not only nationally, but also internationally. So, we have got an internationally acclaimed personality today with us. Welcome, Dr. Priya. Do tell us about yourself again, like a little bit in details. सबसे पहले थैंक यू सो मच इला जी, इतना अच्छा अच्छा बोलने के लिए मेरे लिए, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता है कि वाकई में ये सब मेरे लिए कोई बोल रहा है या किसी और के लिए कोई बोल रहा है. गाइस, आई एम जस्ट a very humble and a normal human being like you. I'm just like you. It's just शायद थोड़ी सी अवेयरनेस ज्यादा आ चुकी है, अदरवाइज कुछ और डिफरेंस नहीं है. इला जी, थैंक यू. आप इतना कुछ मेरे लिए बोले कि मेरी आंखों से मतलब लिटरली मेरा मन करा चश्मा उतार के मैं आंखें पोंछ लूं, बिकॉज बट मैंने जो बोला वो सच बोला आपके बारे में, जितना मैं आपको जानती हूँ. एंड आई नो, एंड उसमें से जितनी भी चीजें मैंने आपके बारे में बोली हैं, कुछ भी फॉल्स नहीं है. इट इज ट्रू. देखिए, कहने का मतलब ये है इला जी कि डेफिनेटली मेरा एक मिशन है. डेफिनेटली मैंने एक हम बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ विदाउट अ मिशन एक ऐसा पाथ पे चली जाती है जो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं. सो माई लाइफ नाउ नहीं, ये तो काफी टाइम से है, बट इट हैज अ मिशन, एंड अ मिशन which helps me to be where I am right now. मिशन हेल्प करता है हर एक घर के अंदर एक हीलर को पैदा करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हम ये समझते नहीं है कि हमारी लाइफ में हमारी कॉम्प्लिकेशन भी हम ही क्रिएट करते हैं और उसको ठीक भी हम खुद ही करते हैं. So this is what my mission is, to make everyone aware of the possibilities that they can achieve. And as your title says, aspire to inspire, I'm adding something more into it, till you expire, before you expire. So मेरा बस यही एक वचन है कि मरने से पहले कुछ ऐसा काम कर जाओ ताकि जिंदगी भर आपके बारे में लोग बातें करें और आपके जो कही हुई चीजें थी उसको फॉलो करें. That's it. डेफिनेटली आप बहुत लोगों के लिए एक, जिसे कहते हैं, एक उम्मीद की किरण लेके आती हैं. और क्योंकि मैं आपको जानती हूँ पर्सनली, सो आई नो दैट यू आर वन ऑफ दोज पीपल who will always reply with in a very polite tone and in very positive tones. आप कभी किसी के लिए ऐसा नहीं बोलते हो कि ऐसा नहीं होगा या ऐसे मत करो. You will always say yes, ये होगा. Give it some time. बिल्कुल सही बात है. Yes, because that's the reason I give myself a title of hope creator. Yeah. क्योंकि ये चीज मैं अपनी जिंदगी में खुद भी आज से 12-13 साल पहले जब मैं खुद भटकी हुई थी या जब मुझे खुद दिक्कतें थी मेरी लाइफ के अंदर, तो मैं खुद ये फील कर चुकी हूँ
कि अगर हम ऑलरेडी डिस्ट्रेस में हैं, कितने फेथ के साथ, कितने बिलीव के साथ हम किसी ऐसी पर्सनालिटी के पास जाते हैं जो हमें एक उम्मीद की राह दिखा सकता है। तो आज अगर मैं उसी चीज का खंडन करूं या उसी चीज को मैं भी करना शुरू कर दूं कि किसी की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, मैं वो नहीं कर सकती, because that is not my inner calling. My inner calling will always help me to guide and create a hope in a person who is looking for it. So मैं तो ये चाहती हूँ कि आपके माध्यम से, GWC है, आकांक्षा त्यागी हैं, आप हैं, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को एक तो मंच भी दे रहे हैं अपनी बात सामने रखने के लिए, और दूसरा जागरूकता फैला रहे हैं। जागरूकता, जागरूक इंसान जिंदगी में हर वो चीज अचीव कर सकता है जो वो चाहता है। और मेरा काम, मेरे अपने बैनर में, चाहे वो एम्पावरमेंट ऑफ होलिस्टिक एनर्जी है, चाहे वो हीलिंग विद प्रिया कॉल है, या फिर एक और जो मैं नया लॉन्च कर रही हूँ एन्चेंटिंग, चाहे वो है, मेरा मकसद ये रहता है कि मैं लोगों के अंदर एकाग्रता, लोगों के अंदर संतुलता और लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस को अवेयर कर सकूं। दैट्स इट। चलो हम कुछ पीछे चलते हैं। क्या आपको कभी ऐसे सिग्नल्स आए थे व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप? क्योंकि बच्चे तो सबका बचपना नॉर्मल होता है, बट डिड यू एवर फील दैट यू हैव दैट एक्स्ट्रा ट्रेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, या आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स आए या कोई ऐसे एपिसोड्स आए कभी लाइफ में जहां आपको लगा कि हाँ मैं कुछ डिफरेंट हूँ लोगों से? ओके, सो मुझे पहले कभी ये रियलाइज नहीं हुआ था, बट पिछले 4 साल से मैं इसको रियलाइज कर रही हूँ कि हाँ, या बिल्कुल मैं सही थी उस टाइम पे भी। जैसे बचपन में हम लोग छोटे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, स्कूल में जा रहे होते हैं, हर चीज को समझ रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो भी मेरी नानी या मेरे घर वाले मुझे जो बोलते हैं वो मुझे पहले से पता है। आभास, Okay. जिसको बोलते हैं ना कि आभास होने की शक्ति, तो ये आभास होता था मुझे, और मैं उसको निग्लेक्ट करती थी, जो आज के टाइम पे हर इंसान करता है। आभास हर किसी को होता है, बट वो सिर्फ उसको निग्लेक्ट करता है बिकॉज उसको एश्योरिटी नहीं है। सो वो आभास होने की क्षमता, शक्ति मेरे पास शुरू से थी, जहां मुझे ये पता होता था कि शादी के टाइम पे क्या क्या रिचुअल्स किए जाते हैं। क्योंकि जब मेरी शादी अच्छा। हो रही थी तो मेरे घर वाले ये कहते थे कि हमें पता ही नहीं कि करना क्या है, और मैं उनको बताती कि नहीं नहीं, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, एंड मेरी नानी कहती थी हाँ तू तो बड़ी नानी है ना। सो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू हैपन। मुझे पता था, शुरू से पता था, बट मैं उसको धीरे धीरे करके इम्पोज कर रही थी अपनी लाइफ में। बट जैसे कि कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम हमारी ही लाइफ में क्यों आती है, ऐसे ही एक टाइम था जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। ऐसी प्रॉब्लम जहां इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसी प्रॉब्लम जहां इंसान जीना छोड़ सकता है। तो उन मुसीबतों से जब मेरी लाइफ में बार बार वो चीजें हो रही हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब कोई अपना चला जाता है, जब हम किसी अपने को खोते हैं, तो वो दुख, वो पीड़ा से निकलने में बहुत साल लग जाते हैं। बट वहां पे मुझे हेल्प मिली, और मुझे समझ में आया कि ये मेरी लाइफ का ट्रिगर पॉइंट था जो अब मेरी लाइफ को चेंज करेगा। और उस दिन से मैंने हिप्नोसिस को सीखा सबसे पहले, फिर मैंने रेकी को अच्छा। सीखा। रेकी को सीखने के बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई, मैं समझती गई कि कौन सी ऐसी मोडालिटी है या कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे मुझे मेरे अपने आप से मिला देगी। तो आज जब मैं अपने वो देखती हूँ ना, कैप देखती हूँ कि कितने फेदर्स हैं इस कैप के अंदर, तो समझ में आता है, अरे यार इतना कुछ सीखने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना था। बट यस, you दिस हैपेंड। you actually wear a hat with so many colorful feathers. थैंक यू। It's like a rainbow, इट इज and it's like a एब्सोल्युटली। crown that you are carrying. तो मुझे, to begin with, like there are many people who don't understand what is healing. हीलिंग क्या होती है, स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, या कोई हमारी एनर्जी कैसे सेंस कर सकता है या स्कैन कर सकता है। ओके, जब मैं अपने बहुत ही फ्रेंड्स को बढ़िया बताती लिया। हूँ आपके बारे में, और मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो हीलर्स हैं, या दे मे बी प्राणिक हीलर्स, योगिक हीलर्स, और any other modality they may be practicing, but then the people who have never been exposed to this kind of क्या कहना चाहिए, इस तरह की, जिन्होंने कभी बात कोई सुनी समझी नहीं होती है, देखी नहीं होती है, उनको मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि लेमैन के लिए हीलिंग क्या है, कैसे वर्क करती ओके, है।
ओके ओके ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा हील या हीलिंग होता क्या है। जी। जब हम हील करना का मतलब सही करना, और हील कैसे कर रहे हैं, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डॉक्टर्स भी हील करते हैं, प्रिस्क्राइबिंग सम मेडिसिन, प्रिस्क्राइबिंग सम सर्जरीज, या जो भी उनका अपना टेक्निक है। बट एक इंसान कैसे हील कर सकता है, ये भी एक क्वेश्चन आएगा ना लेमैन में, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये आया था। और मैं बात कर रही हूँ 2008 की, कि हील कैसे कर सकता है इंसान। हील इंसान तब कर सकता है जब वो कंटेंट है, जब वो कंप्लीट है। देखिए, आज के टाइम पे जब मैं देखती हूँ, मैं हीलर हूँ, वो हीलर है, ये हीलर है, हम सब हीलर हैं, और ये सच है कि हम सब हीलर हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है, हम अपने बच्चों को जब खिचड़ी बनाते हैं ना, जब वो बीमार होते हैं, उसमें भी हम अपनी हीलिंग एनर्जीज को डाल देते हैं, यस, और हमारा वेरी बच्चा वो ट्रू। खिचड़ी खा के ठीक हो जाता है। तो वो कैसे आई माँ के अंदर हीलिंग पावर? हीलिंग पावर हर किसी इंसान के अंदर है, बट उसको वो कैसे यूज कर रहा है, दैट डिपेंड्स। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल हीलर्स की, या पीपल हु कॉल देम हीलर एंड दे आर डूइंग इट प्रोफेशनली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक देयर बैकग्राउंड। First of all, you have to understand that are they complete by themselves? क्योंकि क्या होता है, जब एक घड़ा भरा हुआ होता है ना, जब एक घड़ा भरा हुआ होता है, वो दूसरे की प्यास को बुझा सकता है। मगर अगर वो घड़ा खुद ही खाली है, तो पानी अगर जाएगा भी तो वो पहले घड़ा खुद सोख लेगा। सो ये यस, एग्जाम्पल को जरूर यूज करिएगा। दूसरी चीज, उसकी नॉलेज कितनी है, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, ये चीजें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से आगे बढ़ता है, अपने क्लाइंटल्स, जैसे हम बोलते हैं कि अरे मेरा यहाँ पे क्लाइंट है, वहां पे क्लाइंट है, ये है वो है, दैट डज नॉट मैटर। उस क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी, वो कितनी तक हद तक पूरी करी है आपने एज अ हीलर। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदा, परमेश्वर, साईं बाबा, वाहे गुरु जी, गुरु नानक देव, ये सब भी हीलर ही थे। इनके हाथ में शफा थी, ये जिसको छूते थे वो चीज ठीक हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं या मेरे जैसे और लोग हीलर हैं तो वो साईं बाबा बन गए या वाहे गुरु जी बन गए या कुछ है, मगर उनकी जो ऑरा होती है ना, आप देख के पहचान सकते हो, आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप किसी से बात करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है ना कि यार ये आदमी कुछ अलग है, इसकी वाइब्रेशंस कुछ अलग है, इसकी सोच कुछ अलग है। तो अगर आपको वो फील आती है उस इंसान से बात करते हुए जिसके पास आप जा रहे हैं अपनी हेल्प लेने के लिए, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और ज्यादा सोचिए मत, विश्वास कर रहे हैं तो पूरी तरीके से करें, नहीं तो मत करें। ये 4-5 चीजें हैं जो मैं जरूर समझाना चाहती थी। और हीलिंग हर कोई इंसान कर सकता है, जानते हुए या ना जानते हुए। आप जैसे हीला जी, आप प्लांट्स का काम करती हैं, प्लांट्स को किस तरीके से, कितनी खूबसूरती तरीके से आप पैदा करती हैं, उसको उगाती हैं, उसको एक एक बोलते हैं ना कि एक ऊर्जा क्रिएट करती हैं उसके आसपास, तभी तो वो अलग है। नहीं तो मार्केट में तो कितने सारे और प्लांट्स हैं। तो ये होता है कि जहां हम अपनी इंटरवेंशन, अपनी एनर्जीज को डाल देते हैं एक इंसान के अंदर, उसके अंदर बदलाव डालने के लिए, दैट इज हीलिंग। हीलिंग के पैटर्न बहुत सारे होते हैं। कई लोग प्राणिक हीलिंग करते हैं, कई लोग रेकी हीलिंग करते हैं, कई लोग मैग्निफाइड हीलिंग करते हैं, मगर इसका सोर्स तो एक ही है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। आप यूनिवर्स की लाइफ को यूज कर रहे हैं किसी को हील करने के लिए। तो जरिया एक ही है, हमें पहुंचना, हम सबको पहुंचना एक ही राह पर है। इट्स जस्ट कि हम किस किस इंटेंशन से और कहाँ कहाँ से होते हुए वहां पहुंच रहे हैं। आपका जवाब मिल गया हीला जी? बिल्कुल मिल गया। और मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि जब आपकी जर्नी अब जो हो गई है, आप मेरे ख्याल में 18-20 साल से सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, और मोर देन अ डिकेड यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग एज अ हीलर, एंड यू क्लेम दैट यू आर अ हीलर विद अ डिफरेंस। आई डू दैट, यस, आई डू दैट बिकॉज मुझे ये लगता है मेरे में खासियत क्या है, या मेरे में अलग, अगर हम बात करते हैं खासियत तो खैर नहीं, अलग अलग चीज क्या है यस। मेरे अंदर, मैं स्पिरिट्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, सो कहने का मतलब यह है कि जब आप मेरे पास आते हैं, आप स्टोरीज अपनी कह रहे होते हैं, आप बातें अपनी कह रहे होते हैं जो आपको इंस्टेंट लाइफ में ट्रबल दे रही है, बट उसका सार कहाँ से शुरू हुआ है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जब आप मेरे पास आते हैं या जब आप मुझसे बात भी करते हैं, आई टेंड टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, आई टेंड टू कनेक्ट विद योर स्पिरिट गाइड्स, एंड दे गाइड मी दैट इनका ट्रिगर मोमेंट या इनकी लाइफ का जो सीड है वो यहाँ से ग्रो हुआ है, विच नीड्स टू बी हील्ड। अदरवाइज आप चाहे कुछ भी करते रहें, ये ठीक नहीं हो सकता। तो मुझे इसलिए लगता है कि मैं थोड़ा अलग इसलिए हूँ क्योंकि मैं लोगों की सिचुएशंस को नहीं सुन के उनकी बारीकी इंफॉर्मेशन तक जाती हूँ और वहां से काम करना शुरू करती सो नाइस टू नो दिस। एंड वन मोर थिंग, आपकी जो जर्नी रही, कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी आए होंगे, सीखते टाइम भी और हीलिंग करते टाइम भी। हूँ। वो चैलेंजेस आप कैसे ओवरकम करती हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज वो था हीला जी, जब मेरी मदर आईसीयू में थी और मुझे अपनी रेकी क्लास के लिए जाना था। आई कॉल्ड अप माय मेंटर कि मैं नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को आईसीयू में छोड़ के नहीं आ सकती। उन्होंने उस समय मुझे बात बोली कि देखो वहां डॉक्टर्स हैं उनका ध्यान रखने के लिए, मगर अगर आज तुम इसको छोड़ोगी तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, तो क्विट मत करना, आगे बढ़ो, अपनी क्लास लो और वापस जाओ। हाँ, उस समय वो थॉट बड़ा मुझे वो था कि यार ये कैसे हो सकता है कि अपनी माँ को मैं छोड़, इमोशनल एक होता ना कि इमोशनल कनेक्शन में मैं फंस रही थी, बट दैट वाज द स्टेप व्हेन आई सेड आई विल डू इट। तो जिस यू नो दिन एक बट, इंसान, हाँ, सॉरी सॉरी, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। जिस दिन एक इंसान ये प्रण ले लेता है कि मुझे बदलाव लाना है अपने अंदर और अपने जरिए दुनिया के अंदर, मैं बोलती हूँ इलाजी की पूरी कायनात उसकी हेल्प करती है, पूरी कायनात उसकी हेल्प करती है। तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा बहुत भी मैं जहां तक पहुंची हूं ना, ये शायद उन लोगों की ब्लेसिंग्स है जिनकी लाइफ में मैंने काम करा है। डेफिनेटली। एक चीज और, जैसे आजकल की जो सिचुएशन चल रही है, जैसे अभी हम कोविड से परेशान हैं, आप 2 साल से वार्न कर रही थी और हमको आगाह कर रही थी, गेट प्रिपेयर्ड फॉर अ मेजर चेंज इन 2020। Absolutely, absolutely. I know many people who are in the same profession as yours. I have been talking to them. I have been talking to astrologers. I have been talking to numerologists and healers as well. But you are the only person, Priya, who was constantly hammering it in my mind. Prepare yourselves by doing more meditation. आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को और एलिवेट कीजिए, क्योंकि 2020 में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। Absolutely, क्या absolutely. आप Yes. मुझे पिछले 2 ढाई साल से बोल रहे थे, और मुझे, जैसा कि लोग होते हैं, मैं भी एक आम इंसान हूँ, मुझे लगता था ऐसा 2020 में क्या हो क्या जाएगा। होगा? Yes. और हम सब, मैं ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि हम लोग किस तरह से 2020 के स्टार्टिंग से ही परेशान रहे सब लोग। कुछ कम रहे, कुछ ज्यादा रहे, कुछ उन लोगों ने पॉजिटिवली ले लिया, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव पीपल who have been able to cope with the situation is very small in comparison to the people who have been largely affected with this issue of COVID. Yeah. I don't want to name it because आपने मुझे मना किया है कि इसका नाम नहीं लेना है आपको। Yes. So, जो भी हम लोग के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने जो चैलेंज आया है, इसमें जो लोगों के अंदर फियर है, उस फियर से कैसे कोप करना है। लोग अपने को भी खो रहे हैं। Yeah. है ना, दे आर लूजिंग देयर ओन लव्ड वंस। अब तक हम सिर्फ न्यूज़पेपर में स्टैटिस्टिक्स, एक फिगर आती थी, इतनों की डेथ हुई, इतने केसेस हो गए, लेकिन अब हम देखते हैं उनका ये चला गया, इनका वो चला गया। वो जो फियर ऑफ डेथ है, द फियर ऑफ अननोन, Yeah. मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा ऐसा, इसके साथ कैसे कोप करना है? ओके, सो सबसे पहले 2015 था इलाजी, वो समय मुझे किसी ने मेरी लाइफ पॉजिटिव की वीडियो भेजी थी, ये कहते हुए कि मैम आपने 2015 में बताया था कि 2020 में शिफ्ट आने वाला है। सो 2015 से जो ये कैंपेन मैंने शुरू करा, मिशन ऑफ मेकिंग अ हीलर एट एवरी प्लेस, दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस 2020, एंड माइंड यू 2022 इज आल्सो गोइंग टू बी अ ग्रेट शिफ्ट इन अवेयरनेस। तो 2022 के लिए भी तैयार हो जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, बट 2022 एक ऐसा साल होगा जो हमारी अवेयरनेस को कंप्लीटली शिफ्ट कर देगा। तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है 2020 से, 2022 में ट्रेमेंडस चेंज होगा। सो कहने का मतलब क्या है, फियर
आपने क्या बोला कि कितने लोग इसके अंदर सर्कल में है फियर के? व्हाई? बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग देयर इमोशन एंड दे आर इनटू अ लोअर फ्रीक्वेंसी रेट। अंडरस्टैंड दिस। आज मुझे बहुत सुंदर क्लासिकल म्यूजिक सुनना है, मैं रेडियो पे हूं, मैं क्या करूंगी? रेडियो का फ्रीक्वेंसी का बटन को घुमाऊंगी और मैं रीच करूंगी 102.6 चैनल पे। यस, तो क्यों? क्योंकि मुझे क्लासिकल लेवल को सुनना था, क्लासिकल म्यूजिक को रीच करना था। ऐसे ही अगर मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहती हूँ या मेरे अंदर फियर नहीं आना चाहिए, तो मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करूंगी। और द सबसे सबसे जिसको बोलते हैं ना उपयोगिक सोर्स जो है अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने का, दैट इज मेडिटेशन। क्लीन द स्पेस, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड डू द मेडिटेशन। आज जहां 99% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उतनी ही ज्यादा परसेंट स्पिरिट्स हमारे वर्ल्ड में है जो कि अभी तक लाइफ में मर्ज नहीं हुई है। दे आर जस्ट लुकिंग टू क्रैक योर ऑरा एंड गेट इनटू योरसेल्फ। सिर्फ 1 सेकंड लगता है वो थॉट को आते हुए आपके अंदर, और आपका ऑरा ब्रेक होता है और वो स्पिरिट्स आपकी बॉडी में आ जाती हैं। एंड देन वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग पेन्स, फियर्स, हैजल्स, चैलेंजेस इन आवर लाइफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना। सोर्सेज मेरे पेज पे जाके आप देख सकते हैं, मेरी बहुत सारी सेल्फ हेल्प वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। गाइस, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूं। नो मैटर कितनी फीस है, क्या है क्या है, दैट इज ऑल प्रोफेशनल थिंग्स दैट एवरीबडी हैज टू केयर। आप डॉक्टर के पास जाओगे, उसकी प्रिस्क्रिप्शन तो दोगे ना यार। और नहीं बिल्कुल। तो भी कोई बात नहीं। मेरी कुछ कुछ वेंचर्स ऐसे हैं जहां पे पैसे की बात हम नहीं करते हैं। वी रियली वांट टू हेल्प। मेरी टीम बैठी है आपकी हेल्प करने के लिए। किसी भी दौरान आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से आप ऑरा को अपने हील कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यू जस्ट सेंड अस अ मेल, मेरी टीम रिवर्ट जरूर करेगी आपको। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यू पीपल, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ इला जी, आई हैव अ कंप्लीट टीम नाउ हु आर वर्किंग फॉर ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड। तो कोशिश करिए अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, बिकॉज वो ही एक ऐसी शील्ड है जो आपको हर एक फियर से बचाएगी। और अगर आपकी लाइफ में फियर नहीं होगा, बिलीव यू मी, लाइफ वुड बी as sexy as you can imagine. एक ऑडियंस से एक क्वेश्चन आया है फेसबुक पे। हाँ जी। 2022 is going to be worse than 2020. How? देखो अगेन, Should we? हमने यहाँ पे वर्स का नाम नहीं लिया था। Is it? हाँ, यहाँ पे लोगों की परसेप्शन है, हम डरे हुए हैं ना, क्योंकि हमें अब लगता है कि अरे शिट, क्या फिर 2022 में कुछ और होने वाला है। Why do you get into it? I said it would be a year which will help you to raise your awareness dramatically. तो सोर्स तो कुछ भी हो सकता है, क्यों सोच रहे हो कि गलत होगा? सोर्स कुड बी एनीथिंग। हो सकता है कि रामायण 12 क्या 24 घंटे आना शुरू हो जाए, 24 घंटे टीवी में रामायण ही चले, आप उसी को देख देख के चेंज होते चले जाओ। हम क्यों नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में जा रहे हैं? कौन जो भी ये ऑडियंस है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने हाथ, डोमिनेंट हैंड को अपने सर के ऊपर रखें और 3 बार वेव करके बोले पर्ज क्लियर, और देखिए ये नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न खत्म हो जाएगा आपका। अब क्योंकि आपने पर्ज क्लियर बोला है, सो लेट अस गेट आवर अटेंशन टू स्विच वर्ड्स। ओके, व्हाट आर स्विच वर्ड्स? मुझे तो पता है, लेकिन सबको बताइए कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, उनको चैंट करने से या लिखने से क्या सचमुच फर्क पड़ता है, कैसे पड़ता है? ओके, ग्रेट। सो देखिए, हमने हमारे घर के अंदर जब घुसते, एंड आई एम यूजिंग वेरी लेमैन टर्म्स, इला जी मुझे स्टॉप करना कि अगर ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा लेमैन हो रहा है तो। देखिए, हमारी ऑडियंस जो है वर्ल्ड वाइड है, वो अभी नहीं तो रात को देखेंगे, और उनमें से ज्यादातर नॉट एवरीबडी इज अवेयर of this subject, about this subject. So we actually want it to be simplified as simple as possible, और जैसे आप बता रही हैं, it's really beautiful. So carry on. So देखिए, हम जब बात करते हैं switch word की, there are 2 words connecting, switch word. So any word that switches on the power, those are switch words. आप अपने घर में घुसे, लाइट ऑफ है, टिक करके ऑन करेंगे बटन को तो लाइट ऑन हो जाएगी। The word which directly connects with your subconscious mind, those are switch words. ठीक है? अब जैसे मुझे मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको कॉन्सेंट्रेट करवाना है और कहना है कि वो हर सब्जेक्ट को स्मूथली पढ़ लें, तो इसमें स्विच वर्ड क्या बनेगा? क्लीन।
क्योंकि क्रीम इज वेरी स्मूथ, तो हम क्या कहेंगे, हर बच्चे की कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख देंगे क्रीम. तो Okay. the moment your child will open the book, the first word he will or she will see is cream. तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, एंड देन ही विल स्टार्ट राइटिंग और रीडिंग द बुक. तो ऑटोमेटिकली वो चीज एज स्मूथ एज क्रीम उसके अंदर जाएगी. तो ऐसे ही कुछ चैनल्ड वर्ड होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए. सो स्विच वर्ड्स आर द वर्ड, again using a practice of law of attraction, we have created it. But then if you do it continuously with positivity around you, you will attract what you are looking for 100%. हाँ, I would like to add here that जब भी स्विच वर्ड्स बोलने हैं पूरी फेथ के साथ बोलने हैं. ये नहीं कि प्रिया ने या किसी हीलर ने बोला है मुझे 108 बार बोलना है तो बस मैंने माला फेरी और काम खत्म कर दिया. लीला जी, मैं यहाँ पर बड़ी एक बहुत ही बारीक बात बताना चाहूंगी अपने ऑडियंस को. आपको पता है कि कुछ ऐसे मंत्र जो इतने पावरफुल थे कि मुर्दे को जिंदा कर देते थे, आज के टाइम पे वो मंत्र भी काम नहीं कर रहे हैं. डू यू नो द रीजन वाई? नो, आई विल टेल यू द रीजन. क्यों? क्योंकि हम जब उसको चैंट करते हैं, या हमारे पूर्वज, तो थोड़े पहले वाले लोग जो हमारे से नानी दादी टाइप्स, उससे भी पुराने शायद, तो जब वो लोग चैंट करते थे ना, तो उनके दिमाग में पता है क्या चलता था? मुंह से तो मंत्र कह रहे हैं, बट काम वाली, काम कर दे बहू, खाना बना दे, बच्चों को देख ले. तो अंदर ही अंदर उनके क्या स्टोरीज चल रही हैं विद दी हाउस होल्ड वर्क एंड एवरीथिंग. और कर क्या रही हैं? पूजा कर रही हैं. क्या वो पूजा कभी लगेगी? फिर हम कहते हैं कि मंत्र काम नहीं कर रहा, स्विच वर्ड्स काम नहीं कर रहे. सो 100% गिवन द फोकस, गिवन द कॉन्सेंट्रेशन, एंड 100% विद द इंटेंशन, ये चीजें अगर आप जोड़ के, स्विच वर्ड क्या, मंत्र क्या, आप सिर्फ अपने बच्चे को ब्लेस भी करते हैं ना, तो भी वो 100% काम करेगा. हाँ, जितनी डांटने में एनर्जी लगा रहे हैं उससे ज्यादा तो उनको ब्लेस कर दो. एंड पर्पस ऑफ व्हाई यू आर डूइंग इट. अनदर थिंग इज, आपकी आवाज से लगी लग. हाँ, तो जितनी एनर्जी मदर्स अपने बच्चों को डांटने में लगाती है, उतनी एनर्जी अगर बच्चों को ब्लेस करने में लगा दे तो उनका बचपन ज्यादा खुशनुमा हो जाएगा. अच्छा, ये एक चीज और, आई एम सॉरी लीला जी, मैं परसों ही एक आर्टिकल में, इनफैक्ट इस समय मेरे 3 ब्लॉग्स चल रहे हैं जो मैं लिख रही हूँ, उनमें से एक आर्टिकल में मैं लिख रही थी, अगर हर बच्चा 6 साल से मेडिटेशन करना शुरू कर दे, तो जिंदगी क्या, दुनिया, हमारी पूरी पृथ्वी बदल जाएगी. ये बहुत ही डीप थॉट है, विच एवरी मदर शुड 1% अपनी इंटेंशन इसके ऊपर जरूर डालें. मैं चाहती हूँ कि GWC की जितनी भी लेडीज हैं वो अपने बच्चों को मेडिटेशन करना जरूर सिखा दें. और नहीं अगर आप सिखा पा रही हैं, यू ऑलवेज हैव अ फ्रेंड हियर. किड्स को बहुत जरूरी है वो अवेयरनेस आना, बिकॉज with changing times, the world is becoming really very challenging. They are our future. हम कहते हैं ना, youth is our future. So they are our future. हम जैसे उनको आज उगाएंगे, जैसे उनको नर्चर करेंगे, वो वैसे ही बन जाएंगे. हम उन्हें टीवी में क्या दिखाते हैं? वायलेंस, गेमिंग, ये वो, क्या सीख रहे हैं वो उससे? आप प्लीज अपने पे नहीं देखो भाई, हमारा टाइम चला गया, हम हो गए 45-46 साल के, हमारा टाइम निकल गया. अब टाइम है हमारे बच्चों का. हमने उनको क्या देना है? अगर आज हम ये सीख जाएंगे, विश्वास करो, प्रिया कॉल तो बहुत छोटी सी चीज है, दुनिया हमारे बच्चों को बहुत नाम से जानेगी और बहुत, जैसे बोलते हैं कि वाउच करेगी हमारे बच्चों के लिए. सो फॉर लेडीज इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे शुड लीड बाय एग्जांपल. अपना जो डेली रूटीन है, कि उन्होंने अगर योगा के लिए टाइम रखा है, बच्चों की स्पोर्ट्स क्लास के लिए टाइम रखा है, या ट्यूशंस के लिए टाइम रखा है, वैसे ही थोड़ा सा एक फैमिली एक्टिविटी के तरीके से मेडिटेशन में डाल दें बच्चों को, ताकि उनकी प्रैक्टिस में आ जाए. आप ये देखिए, गुरुकुल का कॉन्सेप्ट क्यों चला गया, जबकि गुरुकुल एक ऐसी प्रथा थी जिससे राजाएं निकले हैं, बड़े बड़े प्रिंस, बड़े बड़े किंग, जैसे बोलते हैं कि कितनी सब चीजें लोगों ने सीखी गुरुकुल में. हमने क्या करा? हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करा, अपना खुद का जो महत्व था, अपना अस्तित्व को खो दिया. और आज एज अ होलिस्टिक प्रैक्टिशनर व्हाट वी आर गाइडिंग, वापस लाओ हमारी चीजें. लेट आवर चाइल्ड लर्न हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू डू योगा, हाउ टू do the breath work.
लेट देम हैव दैट पावर। मैं तो यही चाहती हूँ, प्लीज प्लीज GWC एक एक लेडी आज करे कि यस, हम अपने बच्चों को जरूर सिखाएंगे हाउ टू Yes, कनेक्ट विद देयर इनर बीइंग। I promise. थैंक यू। Though I have a quite a grown up girl at home, लेकिन मैंने बचपन से उसको सिखाया था थोड़ा She's a थोड़ा lovely, कोशिश। lovely, lovely girl. What is dream interpretation, Priya? Okay, wonderful question. देखिए, ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके की है जैसे हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते हैं, ठीक है, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि प्लैनेट्स कैसे हैं, वो कैसे हैं, उसका मतलब क्या है। बहुत ही वेग एग्जांपल दिया मैंने ये। अगर आप वाकई में समझना चाहते हैं कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन क्या होता है, वो इंटरप्रिटेशन होता है जो आपका ड्रीम आपको बता रहा है कि कल आपकी लाइफ में ये होने वाला है। अब लोग क्या कहते हैं, आप मेरा ना ये ड्रीम का मतलब बता दो, आप बता दो मेरे सपने में ये देखा, इसका मतलब क्या है। गाइज, रियली, योर ड्रीम, दैट्स योर ड्रीम, दैट इज कमिंग टू यू। यू नो हाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ड्रीम। आपको सिर्फ मेडिटेशन करनी है। देखिए इला जी और आकांक्षा, मैं आप दोनों से ये बात बोलूंगी, देर आर 100 ऑफ वेज ऑफ मेकिंग मनी, बट प्रिया कॉल क्यों डिफरेंट? आपने कहा ना प्रिया कॉल डिफरेंट है। प्रिया कॉल इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो आपको सही जरिया बता देती है कि क्या करना है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन आपका अपना जो सपना होता है, जो आपका दिमाग आपको दिखा रहा है, वो बार बार आपके सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक पहेली को सॉल्व करना चाहता है जो आपकी लाइफ में इस समय चल रहा है। अब हम इसको इंटरप्रिटेट कैसे करें? द बेस्ट वे इज टू मेडिटेट ऑन द ड्रीम दैट यू आर लुकिंग फॉर द आंसर। करके देखिएगा, अगर कहीं अटकते हो मेल करो मुझे, connect@healingwithpriyakol.com। कुछ लोगों को सपने नहीं आते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आते हैं। बिल्कुल आएंगे। जिन लोगों को सब नहीं आते हैं, उनका जो दिमाग है वो अभी भी कॉन्शियस माइंड में ही अटका हुआ है, उनका स्लीपिंग अच्छा। इशू। जिन लोगों को सपने आते हैं, स्पेशली जो मॉर्निंग आवर्स का होता है ना, क्यों अब मॉर्निंग आवर पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे? बिकॉज दैट्स द ट्रांस पीरियड, that's the period when your conscious mind is sleeping and your subconscious mind is activated. So in that time, yeah, on that time 3:45 कहते हैं ना, वो 3 से 4 का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। And at that point of time, if you meditate while sleeping also, while when you are aware and you are sleeping, but then also you are into that trance zone, you can create your life anything you want. We have a question Yeah. from an audience कि उनको सपने में दांत झड़ते हुए दिखते हैं और वो डर के उठ जाते हैं। हाँ, अब डर क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्होंने गूगल सर्च करा होगा, अरे सपने में दांत झड़ गया तो मतलब खत्म। देखिए, गूगल आंटी जी के पास जाना बंद कर दीजिए, हम सब बैठे हैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। दांत झड़ना, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वो दांत जो है, जो गिर रहा है, वो आपसे क्या कह रहा है। अभी मेरी पीछे एक वीडियो आई थी, सीरीज था, जहां पे मैं समझा रही थी कि दांत हमसे क्या कहते हैं। मैंने देखा। मीनिंग ऑफ पेन और व्हाटएवर। तो अभी आपका जो क्वेश्चन है कि आपने नींद में देखा कि आपके दांत झड़ रहे हैं। दांत जब झड़ते हैं तो क्या होता है, वो स्पेस खाली हो जाती है, वहां पे दांत दोबारा नहीं आता है। सो इट मीन्स कि जो भी चीज आपके आसपास है, इन केस अगर वो आपसे चली जाती है तो वो वापस कभी नहीं आएगी। तो ग्रैब होल्ड द सिचुएशन। तो देखो, क्या आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है? क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसको आपको खोने से डर लगा हुआ है? थोड़ा सा इस पे एनालाइज करो। Guys, everything that you are looking for outer world, all the answers are within. Go inside you, dig more inside you. आप अपनी लाइफ में, मैं नहीं कह रही 10 मोडालिटीज सीखो, बट शुरुआत करो। चाहे रेकी सीख लो, चाहे एंजल सीख लो, चाहे कुछ भी सीख लो, बट सीख के अपनी जिंदगी को बदल लो। मैं तो यही कह सकती हूँ। और मैं चाहूंगी कि GWC प्लीज, आपके जितने भी लोग हैं, अगर वो वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ को परिवर्तन करना चाहते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं उनके लिए। वी कैन डू दैट। We can have a workshop rather for GWC ladies also, क्योंकि मैंने आपसे एंजल हीलिंग सीखी है एंड
छोटे मोटे चैलेंजेस जो भी आते हैं डे टू डे लाइफ में, वो मैं चुटकियों में दूर कर लेती हूँ। That's wonderful. दूसरों की हेल्प भी कर पाती हूँ। ऑल थैंक्स टू यू प्रिया, ऑल नहीं, थैंक्स टू दैट यू। इज आवर टीम, यू नो, वी आर टीम, वी आर वन। और यही तो हमारा मिशन है। एक से एक चेन बनती है, हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाए। दैट्स व्हाट माय मिशन इज। प्रिया, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट टू बिकम अ हीलर? बिकॉज अभी तो अगर हम अभी फेसबुक भी खोलेंगे या इंस्टाग्राम खोलेंगे तो हमें तो मैं भी हीलर, ये भी हीलर, वो भी हीलर। हाँ, देखिए ऐसा है, और 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बैक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नो नो नो, सिंपल। देखिए आपके अंदर ना, पहली बात वो कॉलिंग होनी चाहिए, वो अर्ज होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है इंसानियत के लिए। आप विश्वास करेंगी ईला जी, ये मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बड़ा शॉक था जब मैंने उनको ये बोला था कि आई विल बी नॉट वर्किंग विद यू एनी मोर, बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट पर्पस। वो 3 दिन के लिए शॉक में चले गए थे कि इसको क्या हो गया, व्हाट इज हर प्रॉब्लम। हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से भाई मैडम आती है और कहते हैं कि आई एम लीविंग द जॉब एंड आई विल डू समथिंग एल्स, बिकॉज ऑफ दैट कॉलिंग दैट वाज देयर इनसाइड मी। मुझे कुछ करना है, मुझे इंसानियत को समझाना है। तो वो जो इनर कॉलिंग आपके अंदर होती है ना, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ हीलर। पैसे के लिए हीलर मत बनना, पैसा कमाने के लिए कि हमें भाई टैरो कार्ड करेंगे तो हम पैसा कमा लेंगे, एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो हम पैसा कमा लेंगे। देखो पैसा कमाने के जरिए और भी हैं, इस फटर्निटी को खराब मत करो। भगवान के लिए, मैं अभी इंडिया टीवी पे गई थी, वहां पर भी मैं यही बात बोल के आई, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो हर घर में जरूरत है, इसको खराब मत करो। 1000, 2000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख आप कहीं और से भी कमा सकते हो। गाइस एक बार अगर हीलर पे से ट्रस्ट हट गया, हम बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी। तो प्लीज और अंडरस्टैंड दिस। इसके साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जो लोग सोचते हैं कि हीलर का क्या है, इसने मुंह चलाया, बात कह दी और इतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं, ठीक है? तो मैं उन लोगों के साथ ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो हीलर्स हैं, उन्होंने जो जेन्युइन हीलर्स हैं जैसे आप, दे हैव एक्चुअली स्पेंट years एंड years ऑफ हार्ड वर्क, दे हैव बीन वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क। उन्होंने बहुत ज्यादा चैलेंजेस पार करके वो यहाँ पहुंचे हैं, जहां आज पहुंचे, उन्होंने उसके लिए पैसा भी खर्च किया है। और अभी भी वो आपको जब टाइम देते हैं तो वो अपना टाइम आपको दे रहे हैं। तो चाहे कुछ भी हो, अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं हीलर की फीस को उस टाइम पे, आप गरीबों को खाना खिला दीजिए, आप कोई अच्छा काम कर दीजिए। ऑफ कोर्स। अच्छा मैं बिकॉज एक बात हमें, कहूंगी, हाँ, इला जी, आई एम हाँ, सॉरी हमें, मैं आपको इंटरप्ट कर हाँ, रही हूँ, बट आई हाँ, रियली वांट टू मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। देखिए आज अगर मुझे कुछ हो जाता है और मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो पहला सिचुएशन मेरा क्या होगा, डॉक्टर की ये फीस है, आपको ये पे करनी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू मीट द डॉक्टर। सेकेंडली, डॉक्टर 1000 तरीके के टेस्ट लिख के दे रहा है मुझे और कहता है कि टेस्ट करा के आओ, फिर मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको क्या इशू है। उसके बाद डॉक्टर आपको लिखता है कि आपको सर्जरी करानी है जी, इतने लाख रुपए लगेंगे। उसके बाद भी हम एक फॉर्म साइन करवाते हैं दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनी मिसहैपनिंग। आपने कितने रुपए वहां पे खर्च करे, बट क्यों आपने उनसे सवाल भी नहीं पूछा, बिकॉज आप एक चैनल के थ्रू वहां गए हैं। हमारे पास आने के लिए देर इज नो चैनल। और हम, इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगी, प्रिया कॉल या प्रिया कॉल की टीम अगर काम करती है तो वो उस पैटर्न पे काम करती है कि इन केस अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, वी आर देयर टू रिटर्न योर मनी। बिकॉज हम किसी के पैसे रख के डबल खर्चा करना नहीं चाहते उस पैसे का, बिकॉज होता तो यही है ना, वी आर इनटू एनर्जी वर्क। अगर आपकी ये तरफ से कोई एनर्जी हमारे पास रॉन्ग इंटेंशन से आ रही है, तो वो मेरे पास भी टिकेगी नहीं, इनफैक्ट डबल खर्चा करके निकल जाएगी। सो यस, योर मनी इज इंटेंशन आल्सो हैज टू बी, एनर्जी। यस, आप मेरा ब्लॉग पढ़िएगा, हाउ टू ब्लेस मनी एंड हाउ टू टेक ब्लेस्ड मनी, मेरा आर्टिकल है, मेरी वेबसाइट पे जाके देखिएगा। तो जब गाइस एक बात बताओ, एक इंसान मैनिपुलेटिव जिंदगी कैसे जी सकता है? एक तरफ मैं आपको एजुकेट कर रही हूँ और एक तरफ मैं आपसे ठग रही हूँ, तो कैसे हो सकता है? हाउ इट दिस कैन बी हैपन? सॉरी, ये हमारे हमारे उसमें नहीं हो सकता है। हाँ, कोई और कर रहा है तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती।
प्रिया, मुझे तो आपका ड्रीम इंटरप्रिटेशन का एक सेशन करना पड़ेगा. वी आर गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस. सो हाँ, we have one question from Ekta. She sees her loved one falling in her dreams. कि जिनको चाहे Okay. वो बच्चा हो या कोई भी जिनको बहुत प्यार करती है, वो गिर रहे हैं. हम 2 ओके, क्वेश्चंस लेंगे अब आप मुझे ड्रीम्स के बारे बताइए में. कि आप हाँ. जब एकता जी ये देखती हैं कि आपका कोई बहुत प्यारा इंसान गिर रहा है, आपकी उस समय फीलिंग क्या है? एक तो आप डर रही हैं, दूसरा आप अपने दिमाग से पूछने की कोशिश करिए, व्हाट इज देयर डीप इनसाइड दिस मीनिंग, व्हाट इज देयर डीप इनसाइड द ड्रीम? जब हम अपने किसी प्यारे इंसान को नीचे गिरते हुए देखते हैं, उसका अगर हम एक जैसा स्क्रिप्टेड अगर तरीका निकालते हैं, तो वो तरीका ये होता है कि उसकी लाइफ में कोई फॉल आने वाला है जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है. देयर इज समथिंग कमिंग इन और हिज और हर लाइफ विच रियली वांट्स अटेंशन. तो ये तो मेरा नजरिया है, बट आपका ड्रीम आपको जरूर बताएगा. मेडिटेट ऑन दिस. अच्छा, एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगी आपके ऑडियंस और जो हमें देख रहे हैं उनके लिए. जरूरी नहीं है गाइस दैट whenever you connect to a tarot card reader or whenever you connect to a spiritual healer or a life coach, वो वही बात बोलेगा जो आप सुनना चाहते हैं. क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, मैं आपको सिर्फ एज अ बॉडी देख रही होती हूँ, बट मैं आपकी बहुत पीछे तक चली जाती हूँ. मैं उस जगह तक पहुंच जाती हूँ जहां से आपकी लाइफ में मिजरेबिलिटी शुरू हुई है. तो समटाइम्स इट इज योर स्पिरिट्स हु आर गिविंग यू गाइडेंस टू गो टूवर्ड्स मी, या मुझ तक रीच करो, क्योंकि वो आत्मा पहचानती है कि कौन सा उसका सोर्स है जो उसकी हेल्प कर सकता है. सो ड्रीम इंटरप्रिटेशन का जैसे मैंने बताया एकता जी के लिए कि आपका जो प्यारा इंसान है अगर वो गिर रहा है, तो पहले आप मेडिटेट करो कि ये मुझे क्या कहना चाहता है. और दूसरा, उसकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पे उसको सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज अगर ये पेन यहाँ से गिरेगा तो मैं पकड़ूंगी ना उसको, आई विल होल्ड दैट. तो अटेंशन चाहता है, दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर योर अटेंशन. करके देखिएगा. थैंक यू. एक और आया है क्वेश्चन. रिचा का क्वेश्चन है, शी सीज अ फिगर सिटिंग अंडर अ ट्री विद लॉट्स ऑफ लाइट एंड स्टार्स नियर बाय. ये उनका सपना है. कितना 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 सुंदर. मतलब मैं द मोमेंट आपने मुझे बोला मैं इसको इमेजिन कर पा रही हूँ. हाँ. So, समझने, इट्स लाइक अ फिगर ऑफ गौतम बुद्धा. इट्स लाइक अ फिगर ऑफ अ वेरी हाई इवॉल्व स्पिरिचुअल पर्सन. तो हो सकता है कि आपके मास्टर गाइड्स, आपके मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. आप देखिए कि आप जब उनके पास जाते हो तो क्या आपको शीतलता मिलती है. और अगर ऐसा होता है, वहां पे जाके आप हाथ जोड़िए. गिव थैंक्स बिकॉज दैट्स योर असेंडेड मास्टर गिविंग यू ब्लेसिंग. सच अ ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन. ऑल्सो उनका उनका ड्रीम भी बहुत सुंदर है, लेकिन आपने उसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया है. रियली. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. So, so today, like it's almost time for us to wind up today's session. We would have loved to interact with you more and more, but I'm sure आप हमारे लिए और time निकालेंगे future में. Maybe we could have a जरूर series with जरूर you. जरूर, ऑफ कोर्स दैट वुड बी So, लवली. so let me thank you once again, Priya, for coming over our show. And what is थैंक the यू. parting message that would you would like to give to our ladies? देखिए, सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच ईला जी, थैंक यू आकांक्षा, एंड थैंक यू GWC ग्रुप कि मुझे मौका मिला कि मैं अपनी बात यहाँ रख सकूं. दूसरी बात, हमें हमें इंडिविजुअली हम सबको सक्सेस बहुत प्यारा है, बट वो सक्सेस को पाने के सिर्फ 3 ही ऐसी चीजें हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में कर ली तो हमें कोई नहीं रोक सकता. हम जननी हैं, पता है आपको. वी आर द क्रिएटर एंड वी हैव लिटिल बिट मोर देन यू नो मैन. क्योंकि हम जो कर सकते हैं वो शायद आदमी नहीं कर सकता. वी आर जननी, वी आर द क्रिएटर. तो उस पावर को इंस्पायर करिए. अपने अंदर जो छुपी हुई शक्ति है, जो औरत है, उसको जगाइए, उस पावर को एनलाइटन करिए. एस्पिरेशन, बिकम एस्पायर, गिव दैट एस्पायरनेस टू योर सेल्फ. दूसरा, दूसरों को प्रेरणा दीजिए. मेक अदर पीपल टॉक अबाउट यू एंड दे शुड ऑल्सो रीच द लेवल दैट यू आर टुडे. एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट मोटिवेशन ऑलवेज. कोशिश करिए कि हर वो समय जहां पे आप डाउन हो रही हैं, चेंज योर माइंड, change your thought process, and give that motivation to everybody who is there with you or kahin aur. These are the 3 words that I wanted to give.
such a beautiful message, and I'm sure all those who have watched today's show and all those who will be watching it later will greatly benefit from today's talk. So we take leave rather, by thanking Thank you you. once again. Thank you, Thank you Priya, so and much. God bless you. And I wish that you get more and more awards, and you are able to make a difference in lakhs and lakhs of lives. थैंक यू So thank that you is so what I much. want. अवार्ड्स पता क्या होती हैं जब मुझे लोग यहाँ पे स्माइल करते हैं. That's the award for me. So thank you so much, DWC. Thank you, Ila ji. Thank you, Akansha. And we will definitely meet soon again. And thank you everyone for watching the show. Thank you. So thank you all. We are signing off now. Thank you for being with us. Bye bye. Have a great weekend. Bye.